Okay, actually, my question was that Vinayak said that there is a array name, a single name which is called array name, or single variable name. In case of array, there is a single variable name that is called array name. Suppose I am combining the array name with index number, so the resultant concept is called what? So int. A0, A1. What is A0, A1, A2 in the array? Elements of array, sir. These are the elements of array. Okay. And what is the subscript of array? What do you mean by subscript? Size of array is called Size of array. Size of array is called a subscript of or subscript. Okay, very good. Okay. Can we say that? Sir, Yes. sir, by the definition, sir, we are necessary to start the index with the 0, sir. Yeah. By the definition, with respect to C language, the index number always start from 0. But some other language, it may be start from 1 or some other number. But in C, it always start from 0. Clear? Yes, sir. Sir, sir, I have a question, sir. Like, but it is different from the topic, sir. But it is related to programming, sir. Can I ask, sir? What the question? Sir, like as soon as languages are coming up, sir, like initially it was Python, then Java, and then C, C++, sir. But people are most frequently using Python and Java, sir, due to the sir, like maybe the reason of due to the features which yes, due sir. to facility. So sir, in the nearby future, if any other language come and if that language consists the facilities which currently Python and Java have, people have that. So there is a possibility that people switch to that particular language also, sir. Obviously. So And sir, you know that most of people's right now, most of people's writing programs in using the language called Dart language, which is mostly used in the Android applications or mobile applications. which Dart. language, sir? Dart, D-A-R-T, Dart language. Dart. And right now, this language is very famous for mobile applications. Okay. So sir, the syntax will be also different, sir. Obviously, okay. Something is some look like related with Java, but it is different from Java. Okay, तो ये चलता रहेगा समय के साथ, ठीक है, कि हो सकता है कि कोई नया लैंग्वेज आए और वो नया लैंग्वेज आपके बीच में पॉपुलर हो जाए, ठीक है, अपने सिंटेक्स को लेके, अपने फैसिलिटीज को लेके, ठीक है, अपने कन्वीनियंस को लेके। हालांकि जितने भी मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, ये लोग भी समय के साथ साथ आपको अपने साथ जुड़े रहने के लिए हर वो फैसिलिटी देने के लिए रेडी रहते हैं। और यही कारण है कि पिछले 10-15 वर्षों से जावा भी मार्केट में बना हुआ है, पाइथन भी मार्केट में भी बना हुआ है, ठीक है। रैंकिंग का उतार चढ़ाव डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड की सॉफ्टवेयर जो है वो किस ढर्रे पे जा रही है, ठीक है, उसके आधार पे, ठीक है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। अगर वर्ल्ड में रिसर्च सबसे ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, नए नए चीजों के इन्वेंशन में लोग पूरे दुनिया में लग जाए, तो ऑब्वियसली सी और C++ का इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। अभी लिस्ट ऑफ 10 टॉप प्रोग्रामिंग का आप देखिएगा और पिछले 5 साल 10 साल पहले का देखिएगा तो सी का दिखाता है लगातार, C++ का। इधर का देखिएगा तो आपको पिछले 2-3 साल में आपको पाइथन का जबरदस्त मिलेगा। पाइथन को मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में भी अभी कुछ समय तक रहेगा, जब तक पाइथन को कोई बीट ना करे, कोई लीड ना करे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथन ही सब कुछ है, ऐसा भी कुछ
नहीं है। पाइथन का बहुत सारा फैसिलिटीज ऑलरेडी जावा में भी है, और पाइथन के बहुत सारे काम आप जावा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर आप जावा को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, डॉट नेट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। सर हम्म, sir, Java is an object oriented language. हम्म, So sir, like if we start learning Java, is it required to start it from that object like OOPS concept, or will we have the concept of like what we have studied in C language, sir? No, first of all you have to know about the features of object oriented, and then you have to start the Java programming. Okay, so in the third year, okay, you will get C++ as well as Java, and you know that both are object oriented. ठीक है, Yes, sir. तो दोनों में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक तरह से दो जगह का डिस्कशन होता है, तो आपको इंट्रो ऑब्जेक्ट के इंट्रो समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और बहुत डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सिर्फ एक टर्म है जो बनाया गया है आपके लिए, हमारे लिए समझने के लिए। प्रोग्रामेटिकली इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कंपोजिशन। इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में एडीटी कहते हैं। एंड Yes, sir. Abstract data type. you have read about ADT in data structure, abstract Yes, data type. abstract data type. What is abstract data type? Sir, actually it is a data type, sir, which is derived from the existing data type, sir. Abstraction of the existing data type, sir. Abstraction, how you can abstract? मतलब int को उठा के pint बना दिए तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, एडिटी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया? No, sir. नहीं, We don't study, sir, abstract data type. नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, टीएस का पार्ट है। एडीटी जैसे द एंटायर डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द डेटा ऑर्गेनाइजेशन। The entire data structure is based on the data organization. How do you organize the different kind of data to make your list smooth, efficient? Okay, आप अपने लिस्ट को जो कि आप किसी काम के लिए बना रहे हैं, जो किसी हॉस्पिटल, कॉलेज, किसी चीज से भी रिलेटेड, रियल वर्ल्ड के किसी भी जरूरतों से रिलेटेड हो सकता है, उसको इफिशिएंट और इफेक्टिव आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास लैंग्वेज में सिर्फ डेटा टाइप ही एक माध्यम, और डेटा टाइप, ठीक है, वो नंबर, मैथमेटिकली वो नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग इस पे कैटेगराइज किया गया है, ना कि आपके रोल नंबर, आईडी नंबर, पेशेंट नंबर इस पे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो आपके पास डेटा इस रूप में है, नंबर के रूप में है, कैरेक्टर के रूप में है, स्ट्रिंग के रूप में है, लेकिन आपको इन डेटा को इस्तेमाल आपको रियल लाइफ एंटिटीज में करनी है। ठीक है, जहाँ पे आईडी है, पेशेंट नंबर है, नेम है, ठीक है, कोर्स है, इस तरह से करना है। ओके, तो आप कहिएगा सर रोल है, तो रोल तो दिखने में नंबर लगता है, तो नंबर ले लेंगे इसके, इट्स ओके, बट वो रोल, वो नेम, वो मार्क्स, वो कोर्स, वो ईमेल, ये सब किसी एक चीज से एसोसिएटेड है, लाइक स्टूडेंट से एसोसिएटेड, तो आप सब चीज को इसको कंबाइन करना चाहेंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर ये आपको फोकस करता है कि कैसे आप कंबाइन करेंगे। जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, तो उस पर डिफरेंट फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप एटीएम मशीन में आपने एक जगह पे 500 का नोट रख दिया, एक जगह 200 का नोट रख दिया, एक जगह 100 का नोट रख दिया, तो आपको उसको फंक्शनलिटी में ना लाना होगा कि कब हमको 500 देना है, कब 200 देना है, कब 100 देना है, कब दोनों मिला के देना है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट उस पर क्या अप्लाई करना होगा, फंक्शनलिटीज, एल्गोरिथम, सर। ठीक है, एल्गोरिथम या फंक्शंस उसको बोलते हैं, ऑपरेशन को फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है, रोल है, ठीक है, कोर्स है, आईडी है, ये सब हम इस्तेमाल कब करेंगे भाई? तो ये हम आपके एडमिशन के समय इस्तेमाल करेंगे, आपके बुक इशू के समय इस्तेमाल करेंगे, लाइब्रेरी मेंबरशिप के समय इस्तेमाल करेंगे। भाई इतने सारे के फंक्शनलिटीज हमें बनानी होगी ना।
तो जब हम कोई ऑर्गेनाइज डेटा करते हैं और उस ऑर्गेनाइज डेटा पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक एडमिशन, फी कलेक्शन एंड सो मेनी थिंग्स, और जब इन सब को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट टाइप बनता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है आपका क्लास, आपका क्लास, ठीक है। और इसी का एक एग्जांपल आपका डीबीएमएस में टेबल भी हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप इसको क्या बोलेंगे, क्लास, क्योंकि क्लास इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, ठीक है। तो क्लास इज द एग्जांपल ऑफ ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लियर, क्लियर? Yes, sir. Yes. So Okay. what will be its one line definition? If means like if we want to define ADT in like few lines, what will be the definition? Yeah, obviously you can define very easily that sir, ADT is nothing but ठीक है, to organize the data and to provide different operations, ठीक है। This combination is called ADT. Okay, composition of data as well as behaviors, data Sir. as well as behaviors. Behavior. Sir, in data structure, sir, basically, sir, can I ask one question, sir? Sir, in data structure, sir, basically we organize the data, sir. Like we represent the data in different formats, sir. Like in stack, we follow LIFO order, sir. In queue, we follow FIFO order, sir. So it is. Those are the techniques. Basically, yes, those sir. are the techniques. So, okay. sir, basically, The first is organize the data, and you know very well that we can, for organizing the data, we are using structure or we yes, are sir. using array, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही डेटा है तो हमको स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, हम एरे पे लेके चलेंगे, लिस्ट हम एरे से बनाएंगे। हमारे पास अगर मल्टीपल टाइप के डेटा है तो ऑर्गेनाइज करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, उसका लिस्ट बनाएंगे, एरे का बनाएंगे या फिर लिंक लिस्ट का बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट बनाने का दो ही विकल्प है, स्टैटिकली एरे, डायनेमिकली लिंक लिस्ट। तो हमें ये तो सीखना ही है। तो हम डीएस में एरे भी पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट भी पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, कि एरे को हम एरे ही क्यों रखें, उसमें कुछ डिफरेंट हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, तो उसके लिए अलग से टेक्निक्स दिए गए स्टैक और क्यू का, कि अगर आप एरे लिंक लिस्ट पे ये सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो दिस एरे विल बी कॉल्ड स्टैक, दिस लिंक लिस्ट विल बी कॉल्ड स्टैक, ठीक है। अब डीएस से निकल के आ जाओ, फिर से आ जाओ सी में। डीएस का डीएस में थोड़ा सा कर लेना। Sir, I have some question to ask related to the C, sir. Sir, I have some question to ask related to the C, sir. हाँ बोलो। Sir, in C there is a concept of the procedure, but it can be treated as procedure. How can we understand that statement, sir? पार्टन एक बार फिर से बोलो। Sir, C has no concept of the procedure. हाँ. But it can be treated as a procedure, sir. No, function can be treated as a procedure. हाँ. So function can be a procedure. Yeah. C has no concept of procedure, but C has a functional oriented language, so we can use function as a procedure. Every function that return type is void is treated as a procedure. Every function that has return type as void is treated as a procedure. Clear? Yes, sir. So both are same, sir. Both are same, sir. Function and procedure. Both are same, but there is a one difference. Function has a return type. The property of the function, it must return a value, but procedure, yes, it doesn't return a value. And the void we are using as a procedure, sir. Next. हाँ बोलिए। सर एक सर प्रोग्राम बनाया सर, उसको सर चेक करते ना सर, रन नहीं हुआ है सर, मतलब कि रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। क्या चीज का प्रोग्राम बनाया है? सर एक सर स्टार का प्रोग्राम बनाए थे सर।
स्टार, यस सर, सेफ प्रिंट करना था तो क्या दिक्कत है उसमें? सर। नहीं हो रहा है सर, शेयर करते हैं सर, स्क्रीन देखते हैं किस तरह का प्रिंट बना रहे थे? सर। यूजर को सर बोल रहे हैं सर, यूजर को बोल रहे हैं सर किस तरह का स्टार चाहिए सर, जिस तरह का स्टार चाहिए वो देगा, मतलब स्टार का चाहिए। फिर मतलब यूजर फिर बोलेगा मतलब कि क्या को स्टार प्रिंट करना है, 7 प्रिंट करना है या 5 6 जो भी अच्छा, करना हो, वही है सर। तो ठीक है, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, देख लेते हैं। इनका है कि कैरेक्टर आप स्टार फिक्स करके बनाए थे, हम जो कैरेक्टर दे देंगे वही प्रिंट होना चाहिए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं ना, बहुत सारा गलत काम किए हैं आप। पहला तो इंटर द सिंबल फॉर मेकिंग द डायमंड, तो आप यहाँ सी लीजिए, एस की जगह पर सी कीजिए। एस की जगह पर सी कीजिए। जहां पे सिम लिखा है ना उसमें एस लगाया है, सी कीजिए उसको। अरे परसेंट एस सिम में देखिए, सिम सिम। अरे scanf ये line. कहाँ चला गया भाई? स्कैनअप में बोल रहे हैं, यहाँ सी, परसेंट सी, परसेंट सी, परसेंट सी। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ रोज ये ले लिए। ये नंबर बाई 2 क्यों किए? ये सेमीकोलन क्यों लगा है? ये सब गड़बड़ सड़बड़ बना रहे हो जी। इस सबको हटा दो, इफ तो को हटाओ, ये सबको इफ पूरा हटा दो ये। अरे इफ हटाओ ना जी, इफ। अरे पूरा हटा दो, पूरा ब्लॉक, इफ का पूरा ब्लॉक हटाओ। अरे ये इफ का पूरा ब्लॉक हटाओ बाबू। अरे कुछ कुछ लिखने से थोड़ी बनेगा, ये पूरा ब्लॉक हटाओ, ये वाला ओपनिंग ब्रेसेज क्लोजिंग ब्रेसेज के अंदर जो कुछ भी है इफ में। अभी जो हटाया उसके नीचे में ओपनिंग ब्रेसेज क्लोजिंग ब्रेसेज है ना, वो सब हटा दो। अरे कौन आशुतोष कुमार सुन रहे हो तुम? हाँ, हाँ, नहीं स्कैनअप रहेगा, हाँ वो हटाओ, हाँ। एन प्लस, एनओ प्लस प्लस भी हटाओ। उसके नीचे प्रिंटअप भी हटाओ, उसके नीचे क्लोजिंग ब्रेसेज है वो सब भी हटाओ। उसके नीचे सी बराबर है नंबर बाई 2 1, वो सब हटा दो। स्कैनअप में तुम्हारा ये छूट गया है, ब्रैकेट बंद करो स्कैनअप में ऊपर में। अरे क्या कर दिया जी? अरे तुमको टाइपिंग भी नहीं हो रहा है जी। अरे तुम क्या कर रहा है जी? हाँ, अरे सेमी कोलन दो वहां। हाँ, जहां हम बोले वहीं पे रहो, इधर उधर कुछ भी नहीं करना, सेमी कोलन दो वहां। हाँ, उसके सर नीचे वाला लाइन M% को भी हटाओ। लगेगा, सर M% M% भी वहां पर लगेगा ना, NO M% पर। लगाओ, एनओ के पहले M% लगाओ ऊपर में। हाँ, अरे नीचे वाला लाइन मिटाओ, उसके उसके नीचे वाला लाइन को इरेज करो, मिटा दो। सर आप स्केच का यूज करके बता दो उनको। अरे वो तो मैं बता ही दूंगा, रुक जाओ। और ये बना रहा है, रू नंबर दे दिया है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, डालो एनओ, आई लेस देन इक्वल टू एनओ करो।
कंडीशन में चेंज करो, वो हटाओ कंडीशन में वो सब चीज। हाँ, आई लेस देन इक्वल टू एनओ करो, इक्वल भी लगाओ वहां, आई लेस देन, हाँ आई प्लस प्लस, ठीक है। नीचे फॉर आई जे ले लो, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे लो, जे इज इक्वल टू 1 सेकेंड लूप में। कहाँ चला गया आशुतोष कुमार, कहाँ गायब हो गया? सर स्विच ऑफ है सर। अरे बाप। उसका क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, क्या क्वेश्चन था? हाँ, यस सर, यस क्या सर। क्या समझे? कोई नंबर लेना है, कोई डिजिट लेना है और उसको स्टार के रूप में प्रिंट करना था। हाँ, जैसे कोई 5 दिया तो 5 पूरा प्रिंट स्टार के रूप में करना है, स्टार से 5। जो है तो मान लीजिए कि इंट आर रो के लिए, सी कॉलम के लिए, एस स्पेस के लिए, ठीक है। और हमको चाहिए सिंबल, तो वो सिंबल के लिए हम कैर ले लेते हैं, हेलो इसको सर, प्रिंट करना। हाँ, आशुतोष उसको ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यूजर से क्या मांग लिए? इंटर वर्ड सिंबल, और स्कैनफ क्या कर लिए? %C सर, %C ना। और सॉरी, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, रो नंबर भी लेना है, नंबर ऑफ रो हम मान लीजिए फिक्स करके 5 ही के लिए बनाते हैं, बाकी अपना आप चेंज कर लीजिएगा, या वो जैसा पूछा था वैसा ही कर देते हैं, प्रिंट एफ। सर। हम्म, सर यदि सर हम जैसे कि उसको बोलेंगे सिंबल देने के लिए तो सर 6 जैसे लिखेंगे तो वो तो 6 में सर कैसे प्रिंट कर देगा सर? विषम संख्या रहेगा तब ना। कम संख्या क्या होगा? आप 6 दीजिएगा तो 6 ऐसे आएगा, आप 6 दीजिएगा, 6 डायगोनल तो प्रिंट सही करना सर है। सेफ नहीं बनेगा। क्या रिसेप बनेगा? डायगोनल ना आपको करना है, डायमंड ना करना है। ये सर हम तो सर मतलब कि हम जो सोचे सर विषम संख्या रहेगा तब उस तरह सर प्रिंट करेगा, सम संख्या को विषम बना दिया जाएगा सर। बट ठीक है, ये डायगोनल नहीं है, यस सर। तो कोई भी दोगे, 6 दोगे तो ऐसे आएगा, क्वेश्चन मार्क दोगे तो क्वेश्चन मार्क ऐसे आएगा। ऐसे आएगा, जो दोगे वो आ जाएगा। बनाए के छोड़ दे? छोड़ दीजिए सर। ये वाला सर तो बताए थे आप। नहीं, हम तो फिक्स स्टार पे ना बताए थे, इकार आएगा सिंबल देंगे तो बस कुछ नहीं करना है, वहां पे स्टार की सर जगह उसको पे सिम 6 से रिप्लेस कर देंगे। को, सिम नहीं, सिम को प्रिंट करा देंगे ना, कोई भी कैरेक्टर दोगे उसमें काम कर यस जाएगा। सर। ठीक है, जैसे ये वाला था वो लूप में लिख देता हूँ एक बार फिर से। हमने 5 का बताया था,
अटेंडेंस भी करना है। यहाँ पे आप लगाइए फॉर का लूप, फॉर रो 1 से लेके 5 तक चला दीजिए। इसमें आप स्पेस चला दीजिए, फॉर s इज इक्वल टू 1, s लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस रो, ठीक है, s प्लस प्लस। और इसमें आप क्या कर देते थे, प्रिंट स्पेस। एक स्पेस दे दीजिए, इसका काम खत्म। अब आप चलाइए कॉलम का, फॉर c इज इक्वल टू 1, ठीक है, C less c than लेस देन equal इक्वल टू r, 2 c into प्लस, सॉरी 2 इंटू r 2 माइनस into होगा 2 into r minus 1। 2 इंटू r माइनस 1, और यहाँ पे आप कर दीजिएगा c प्लस क्या, प्लस। और इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए कि प्रिंट करा दीजिए जो आप सिंबल लिए हैं, प्रिंट एफ परसेंट 6 सी, और सिंबल आप नहीं सिम, was ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन क्रिएट कीजिए, बंद कीजिए, हो गया। दैट्स इट, ठीक है। अब आप सिंबल में जो दे दीजिए, 6 दे दीजिए, 8 दीजिए, 5 दीजिए, 2 दीजिए, 1 दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, जो दीजिएगा उसी का डायमंड प्रिंट होके आएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, पहले हम लोग इतना के जगह पे हम लोग सीधे लिखते थे क्या, स्टार, ये नहीं लिखते थे। अब जो आप इनपुट देंगे सिंबल में वही आएगा। अब स्टार देंगे तो स्टार आएगा, क्वेश्चन मार्क देंगे क्वेश्चन, 6 देंगे 6, 8 देंगे। ओके, तो इसका जिसका स्नैप लेना है ले लीजिए, इसका स्नैप ले लीजिए आप लोग। एंड लेट्स कम टू द अटेंडेंस पार्ट।